بھارت کا غیر قانونی اقدام 5 اگست 2019 کو سیاہ ترین دن یوم استحصال کشمیر۔ ملک بھر میں صبح 10 بجے یوم استحصال کشمیر پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ بھارت نے نہ صرف عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیری بلکہ اپنے آئین کی بھی پامالی کی ہے۔ ISPR نے اس موقع پر ایک نیا نغمہ انسانوں کے جہاں میں جاری کیا جو کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور بھارتی مظالم کے خلاف ایک گونجدار پیغام ہے۔ یوم استحصال کشمیر کے 6 سال مکمل، دنیا بھر میں کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال اور احتجاجی مظاہرے۔ ISPR نے نیا نغمہ انسانوں کے جہاں میں جاری کیا جو کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور بھارتی مظالم کے خلاف ایک گونجدار پیغام ہے۔ قومی اسمبلی میں بھارت کی جانب سے 2019 میں کیے گئے محتسبانہ اقدامات کی مذمت کے لیے 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پیش کی گئی قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی گئیں۔ قرارداد وفاقی وزیر امیر مقام نے پیش کی، کہا بھارت کے محتسبانہ اقدامات قابل مذمت ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کا بازار گرم کر رکھے ہوئے ہے۔ حالیہ مارق حق نے بھارتی غرور کو خاک ملا دیا۔ مارق حق کی وجہ سے کشمیری بہن بھائیوں کے حوصلے بلند ہوئے۔ PTI کے 5 اگست کو احتجاج کی کال افسوسناک ہے۔ شازیہ مری نے انگریزی زبان میں یوم استحصال کشمیر پر قرارداد پیش کی، کہا بھارت کی جانب سے یک طرفہ اقدامات جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ پاک فوج کے سربراہان کا یوم استحصال پر کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، نیول چیف اور ایئر چیف نے بھی کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا، کہا مسلح افواج کشمیر عوام کے حق خود ارادیت اور جدوجہد کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ کشمیریوں کی جدوجہد اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہے۔ بھارت کا کشمیر پر غیر قانونی قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پیغام، کہتے ہیں بھارت کی غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو 6 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ بھارت نے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ بھارتی اقدام کا مقصد کشمیر کی متنازع حیثیت اور خود ارادیت کو کمزور کرنا تھا۔ 6 سال میں بھارت نے آبادیاتی ساخت اور سیاسی نقشہ تبدیل کرنے کے اقدامات کیے۔ غیر کشمیریوں کو ووٹر لسٹ میں شامل کرنا بھارتی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ منمانی حلقہ بندیاں اور باہر کے افراد کو ڈومیسائل دینا سازش کا حصہ ہے۔ کشمیری عوام کو ان کے ہی وطن میں بے اختیار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کشمیری عوام بلا جواز گرفتاریوں، دھمکیوں اور محاصروں کا شکار ہیں۔ بھارت نے مقامی میڈیا کو خاموش اور عوام کو آزادی اظہار سے محروم کیا۔ کشمیری عوام کو اپنے ناقابل تصنیف حق خود ارادیت کے استعمال سے روکا گیا۔ حکومت پاکستان کا کشمیری عوام سے غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی 5 اگست 2019 کے بھارتی غیر قانونی اقدامات کی شدید مذمت، کہا بھارتی اقدامات اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی اقدام مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادیاتی سیاسی منظرنامے کی تبدیلی کی سازش ہے۔ یوم استحصال بھارتی بربریت اور امن کی انکار کی سنجیدہ یاد دہانی ہے۔ کشمیریوں کے انسانی حقوق و شناخت سے انکار علاقائی عدم استحکام کی وجہ ہے۔ بھارت جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا۔ بھارت نے ریاستی دہشت گردی اور جبر میں تقریباً 8 دہائیوں سے 2 گنا اضافہ کر دیا۔ کشمیری عوام نے بے مثال استقامت سے بھارتی ظلم برداشت کیا۔ آج کشمیریوں کی قربانی استقامت کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ حقیقی کشمیری قیادت کو خاموش کرنا بھارت کے تسلط پسندانہ ایجنڈے کا حصہ ہے۔ شبیر شاہ، یاسین ملک اور مسرت عالم کی قید کشمیری حوصلے کو کمزور نہیں کر سکتی۔ بھارت کی مقبوضہ کشمیر کو دیگر ریاستوں کی طرح بنانے کی کوشش قبول نہیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یوم استحصال کشمیر پر اجتماع سے خطاب، کہتے ہیں بھارت کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کا پابند ہے۔
भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपने लिए फैसला करने का हक देना होगा। कश्मीर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। भारत की मौजूदा हुकूमत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मजीद मजबूत कर रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट किसी बैनुल-अक़वामी तनाज़े पर कोई फैसला नहीं कर सकती। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की बैनुल-अक़वामी तहकीकात करवाने को तैयार है। ये वाक़या दरअसल भारत का फ्रॉड था और भारत ने पहलगाम पर झूठ बोला, लेकिन उनकी किस्मत ही खराब थी। यौम इस्तिसाल कश्मीर 5 अगस्त तारीख का स्याह तरीन दिन बन चुका। पाकिस्तान का हर शहरी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा है। पाकिस्तान का हर शहरी कश्मीर को अपनी शहरक समझता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर वीडियो बयान। कहा, पूरी दुनिया ने मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ देखी हैं। कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत हमेशा जारी रखेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी लोहे तकदीर पर सबत हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यौम इस्तिसाल कश्मीर पर खुसूसी पैगाम। कहा, हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानियों को ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश करती है। कश्मीरी फैसला करेगा कि हम साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे। मकबूजा कश्मीर का मसला आलमी ज़मीन पर सवाल है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर आलमी बरादरी की बेगैसी और मुजरिमाना खामोशी तारीख का स्याह बाब है। कश्मीरी बहन भाइयों पर आज़ादी का सूरज तुलू जल्द होगा। बर्र-ए-सग़ीर में मुस्तक़िल अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। हज़ारों कश्मीरी शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। भारत जुल्म करके कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। कश्मीर में हर रोज इंसानियत शर्मिंदा हो रही है। कश्मीर हमारी बुनियाद और पाकिस्तान की शहरग है। मारक़े हक में पाक फौज ने भारत के दांत खट्टे किए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने पूरी दुनिया में कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पूरी दुनिया में मसला कश्मीर की बात की है। पाक फ़िज़ाइया ने भारत के 6 जहाज गिराए, उनके असासों को तबाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत कश्मीरियों का उनको हक दिया जाए। कश्मीरियों का हक है कि वो फैसला करें किस मुल्क से इल्हाक़ करना चाहते हैं। सिंध असम्बली कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान का हर फर्द कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद में उनके शाना बशाना खड़ा है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जिल नामीमन का यौम इस्तिसाल कश्मीर के मौके पर पैगाम। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी इदारे भारत पर दबाव डालें कि वो कश्मीरी अवाम को उनके हक़ खुद इरादियत दे। आज के दिन इस अज़्म का यादा करते हैं कि कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। कश्मीर की तहरीक आज़ादी में 5 अगस्त स्याह तरीन दिन है। मिसाल मलिक की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मज़ार क़ायद पर आकर हमारी रूह और ताकत मिलती है। कायद आज़म ने ज़िंदगी का हर लम्हा पाकिस्तान की आज़ादी के लिए वक्फ किया। कायद आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा था। आज कश्मीर को मालूम है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। पाकिस्तान में रॉक का नेटवर्क फैला हुआ है। भारत ने जंग में भी शहरी आबादी को निशाना बनाया। अल्लाह ने मारक़े हक में पाकिस्तान को फतह अता फरमाई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में मुजव्वज़ा इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि FBR इस्लाहात से GDP टैक्स कलेक्शन के तनासुब में इजाफा खुशाइंद है। वफाकी हुकूमत और मैं खुद इस्लाहाती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। इस्लाहात की राह में हायल रुकावटों को ख़त्म करके मुस्तकिल नफाज यकीनी बनाया जाए। कस्टम्स क्लियरेंस में इस्लाहात को मुल्क भर में यकसा और मौसर अंदाज में नाफिज किया जाए। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दारा जाती कार्रवाइयों में दरकार वक्त कम किया जाए। पहले से आयद करदा टैक्सेस का मौसर नफाज ही कलेक्शन में कलीदी किरदार अदा करेगा। FBR के अहदाफ के लिए मुकर्रर करदा वक्त में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम किया गया तो 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी होगी।
वफाकी हुकूमत की जानिब से नया NFC एवॉर्ड जारी नहीं किया गया। रज़ा रब्बानी कहते हैं कि नया NFC एवॉर्ड में सूबों का हिस्सा 57.5% से कम किया जा रहा है। हुकूमती शफाफियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पाक अमरीका मुआहदे की तफसीलात नहीं दें। KP में कोई नया ऑपरेशन नहीं हो रहा, नेशनल एक्शन प्लान पर लाजमी अमल होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मसला सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं बल्कि सियासी क़यादत की मुंसलिक है। बाजौड़ समेत किसी भी जगह कोई नया ऑपरेशन नहीं हुआ। अलबत्ता नेशनल एक्शन प्लान पर लाजमी अमल होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सियासी फोर्सेस कहाँ हैं? खैबर पख्तूनख्वा में सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज है। बानी PTI कह रही हैं अगर वज़ीर आला ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की तो इन्हें फारिग कर दिया जाएगा। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवेद अशरफ को तुर्किया में आला अस्करी एजाज लिजन ऑफ मेरिट ऑफ दी तुर्क आर्म फोर्सेस से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवेद अशरफ को तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया है। तुर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर से अहम मुलाकात, दो तरफा बहरी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक बहरे के मुलजिम प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड का भी दौरा किया। गुलचिक नेवल बेस के दौरे पर आबदोजों की तामीराती सलाहियतों का भी मुशाहिदा। पाकिस्तान ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का यूक्रेन रूस जंग में पाकिस्तानियों की शिरकत का इल्जाम मुस्तरद कर दिए। यूक्रेन से वजाहत तलब करने का फैसला। दफ्तर खारजा ने कहा कि यूक्रेनी हुकाम ने अपने दावे के हवाले से कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किए और न ही बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया है। यूक्रेन के हुकाम से इस मामले पर वजाहत तलब की जाएगी। पंजाब काबीना ने सरकारी मुलाजिमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी दे दी है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। जबकि फ्लड ड्यूटी अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50,000 रुपए इनाम का भी ऐलान। 5वीं और 8वीं जमात के इम्तिहान सरकारी तौर पर लेने की भी मंजूरी। जेलों में कैदियों के लिए बाकायदा इंडस्ट्री कायम करने का हुक्म। इस्राइली वज़ीर आज़म का फौजी ऑपरेशन में तोसी और गजा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जे का फैसला। इस्राइली मीडिया के मुताबिक ज़ेर गौर मंसूबों में इन इलाकों में भी फौजी कार्रवाइयाँ शामिल हैं जहाँ ये शुबा है यरगमाली रखे गए हैं। मंसूबे के हवाले से हतमी फैसला आज होने वाले काबीना इजलास में किया जाएगा। फ़खर जमान फिटनेस मसाइल का शिकार। साबिक कप्तान बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम आइंदा सैफ अली की सीरीज और एशिया कप में एक्शन में नजर आ सकते हैं। वापसी वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में बाबर आजम की कारकर्दगी मशरू। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का दी 100 लीग के लिए नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के साथ मुआहदा। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स 1 अक्टूबर से भारतीय मीडिया ग्रुप सन के ज़ेरे इंतज़ाम आ जाएंगे, जिसके बाइस पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शिरकत पर सवाल उठे थे। और बड़े पर्दे की बड़ी अदाकारा, हिदायतकारा और प्रोड्यूसर दी ट्रेजिक ब्यूटी शमीम आरा को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। शमीम आरा का शुमार पाकिस्तानी सिनेमा की बाअसर अदाकाराओं में किया जाता है। पहले फिल्म कवारी बेवा थी। फिल्म सहेली से शोहरत और निगार अवार्ड हासिल किया। पाकिस्तानी पहली रंगीन फिल्म नाइला में मरकजी किरदार अदा किया। 1989 में फिल्म 30 मार खान बतौर अदाकारा आखिरी फिल्म थी। पाकिस्तान की पहली कामयाब खातून हिदायतकारा का एजाज भी हासिल किया।